How are you? Hopefully you all are fine and fit. So without wasting any time, today we are going to start our 11th syllabus. We will start the very first chapter. The chapter is units and measurement. So about this chapter. This chapter is further subdivided into the four subparts. The four subparts of this chapter is, the first one is physical quantities. The second one is measurement of physical quantities. The third one is dimensional analysis. Once again, the name of this one is a dimensional analysis. And the fourth part of this chapter is the error. Before the start, I just want to inform you that in 11th standard as well as in the 12th standard, in each chapter there is one key part. There is a one key sub-chapter. Just like in these four, the first two are simply the theoretical terms, the basic terms, so आपको बहुत easily समझ आएगा. Then move on to these last two parts, that is the dimensional analysis and the error. That's about the main or the key part of the first chapter. Means अगर हमें पेपर के लेवल को पिक करना है, अगर आपने अपनी नॉलेज को पिक करना है, then we have to concentrate on these two parts. No doubt we will discuss all the four parts in proper detail, but when we will start these two parts, we have to emphasize more on that, because all the objective, numerical, competitive part, all are totally depend upon these two parts. So that's about the content of the very first chapter, that is units and measurement. So today we are going to start the third and the fourth part. We will start, but before that, let's discuss some basics of this chapter, units and measurement. In my class, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, we will spend a few minutes on the basics so that हमें आगे चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. So today we will discuss something initial term, just like what is the meaning of the physical quantities, होती क्या है, measure कैसे होती हैं. Then properly we will move on to the dimensional analysis and the error. So today I am going to start some initial basic things जो आपको क्लियर होंगी, तभी हम आगे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे. सो एट द स्टार्टर सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. एक सिंपल सा कांसेप्ट को यूटिलाइज करूं मैं. द क्वांटिटीज व्हिच वी आर यूजिंग इन फिजिक्स, दैट आर कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. अब इसको एलैबोरेट करता हूं. द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, वो क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो. The quantities which are measurable are called as physical quantity. आप किस किस चीज को मेजर कर सकते हैं? आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं. You can measure current, you can measure temperature, you can measure intensity of light. लाइट आ रही है, लाइट ज्यादा आ रही है, लाइट कम आ रही है. लाइट के अंदर अगर रूम के अंदर लाइट कम है तो हम लाइट ऑन कर देते हैं. तो ऑन करना, ऑफ करना, इट मींस यू आर मेजरिंग दैट इंटेंसिटी की लाइट ज्यादा है, कम कर लो, कम है तो ज्यादा कर लो. इट मींस यू आर एबल टू मेजर दैट. सिमिलरली द क्वांटिटी, जस्ट लाइक द नंबर ऑफ मोल्स और these are the quantities which are measurable are called as the physical quantities. Now move on to the point, what are the non physical quantities which cannot be measured, जिनको measure नहीं कर सकते हैं. For example, गुस्सा, anger, you can't measure. कितना गुस्सा आ रहा है, you can't measure that. Yes, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, that's another issue, but you can't say कि इतना गुस्सा आ रहा है. Love, emotions, these are the non physical quantities which cannot be measured. ठीक है, शो हो सकती है, but you can't measure it. That's why can I call it as the non physical quantities. So the quantities which we are using in physics, the quantities which are measurable are called as the physical quantities. So at first we will discuss कि कौन-कौन सी physical quantities हैं, कौन सी measurable quantities हैं. We will not discuss about the known physical quantities. That is only for your knowledge. But अगर हम बात करें physical quantities की, तो सबसे पहले start करते हैं कि physical quantity को measure कैसे करा जाता है. ध्यान से देखना सब. Suppose there is any physical quantity. Let the physical quantities Q. It may be mass, it may be length, it may be time, it may be anything. If you want to specify a physical quantity, अगर आप किसी physical quantity को define करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसको समझाने के लिए you need two parameters. Once again, if you want to specify a physical quantity, here Q stands for any physical quantity. I have already told you. It may be mass, it may be length, it may be time, it may be anything which is measurable. If you want to specify any physical quantity, then the two parameters are required. Now these two parameters are,
The first one is number. We can also call it as a numerical value. And second U stands for the unit. आपको पता है फिजिक्स में जब भी आप किसी भी टर्म को स्पेसिफाई करते हो तो आपको उसको यूनिट हमेशा स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो क्वांटिटी कंसिडर नहीं होती है सही। सो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया कि अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, देन द टू पैरामीटर मस्ट बी देयर। द फर्स्ट इज द नंबर, सेकंड इज द यूनिट। अगर आप इन दोनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर भी छोड़ देते हो, देन यू आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। सो आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल, लिसन वेरी केयरफुली। फॉर एग्जांपल, मैं मास की बात करता हूं। मास, कैन वी से दैट मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी? मैंने बोला वो क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है, मास मेजर होता है, दैट्स व्हाई कैन वी से दैट द मास इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मैंने मास की वैल्यू को लिख लिया, इट इज 1 किलोग्राम। Can we say that here N1 is the number and kilogram is the unit? It means अगर मुझे मास को प्रॉपर्ली डिफाइन करना था तो मुझे दोनों चीजें लिखनी पड़ी। मुझे उसका नंबर भी लिखना पड़ा, that is 1, और मुझे उसके यूनिट भी लिखने पड़े, that is किलोग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों में से एक पैरामीटर भी छोड़ देता हूं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल और देता हूं, साथ में टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम है 1 मिनट, टाइम है 30 मिनट, टाइम है 1 आवर एंड सो ऑन। कैन वी से दैट 1 इज अ नंबर, मिनट इज अ यूनिट, 1 इज अ नंबर, आवर इज अ यूनिट। सो इन दीज टू पैरामीटर्स मैंने दो चीजें स्पेसिफाई करवाई। यहां पर क्या क्या स्पेसिफाई करवाया? मैंने एक तो नंबर स्पेसिफाई करा, एक मैंने यूनिट स्पेसिफाई करा। तो पहली चीज जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आपको याद रखना है कि whenever you are writing any physical quantity, the two parameters should be there. The two parameters are, one is a number, second is a unit. अगर आपने दोनों में से एक पैरामीटर को भी छोड़ा, we are not able to express this physical quantity. एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। Suppose we are going to the market and suppose I have to purchase sugar. मैं मार्केट में जाता हूं और शॉपकीपर को बोलता हूं I need 1 sugar. Definitely he will not understand what I wanted. जब मैंने उसको बोला I need 1 sugar means मैंने सिर्फ उसको नंबर बताया, मैंने उसको यूनिट नहीं बताया। So he is not able to understand कि मुझे क्या चाहिए। फिर मैंने उसको लाके बोला किलोग्राम शुगर दे दे। He will definitely ask कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एंड सो ऑन। मींस अगर इन दोनों पैरामीटर में से, नंबर और यूनिट में से अगर मैंने कुछ भी छोड़ा, अगर मैंने यूनिट छोड़े, सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा। और अगर आपने यूनिट तो बोले और नंबर छोड़ा, स्टिल यू हैव टू स्पेसिफाई दैट कि आपको कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 इसमें में। टाइम की बात करते हैं, योर लेक्चर इज ऑफ 1 मींस 1 मिनट, 1 आवर, 1 day and so on. Definitely I have to specify that I will teach you today I will teach you for 30 minutes. If I'll say I will teach you minutes, definitely you will not able to understand. अगर मैं आपको बोलता हूं आज मैं आपको 30 पढ़ाऊंगा, 30 minutes पढ़ाऊंगा, 30 hours पढ़ाऊंगा, 30 days पढ़ाऊंगा, doesn't, you can't able to understand. So it means when we have to specify any physical quantity, then the two parameters must be there. The two parameters are, once again, the two parameters are, one is a number, that is a numeric value, and second is a U. U stands for the unit. So जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे आपने इस टर्म को याद रखना है कि आपको नंबर भी मेंशन करना है और आपको यूनिट भी मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो Q इज इक्वल टू N इनटू U। दो पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। सपोज मास की वैल्यू है 1 किलोग्राम। Can we say that kilogram is the SI unit? We will discuss about the units also. दो टाइप के यूनिट मेनली हम यूटिलाइज करते हैं, SI और CGS. Okay, leave it. Suppose that we have a mass is equal to 1 kilogram. Convert it into gram. Gram में convert करते हैं. Gram में convert करा, can we say that it is 1000 gram? Now look at this two equations, two number. Can we say that in the first one number क्या था 1 और यूनिट क्या थे किलोग्राम।
मैंने क्या करा, मैंने SI को चेंज कर दिया CGS में। मैंने क्या चेंज कर दिया, कैन बी से दैट मैंने सिस्टम चेंज कर दिया। पहले वो SI सिस्टम था, फिर CGS सिस्टम था। नंबर 1 से क्या बन गया, 1000 बन गया, और यूनिट किलोग्राम से क्या बन गए, ग्राम बन गए। बट क्या क्वांटिटी चेंज हुई? पहले भी मास था, अब भी क्या है, मास है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। When we change the system, जब हम सिस्टम को चेंज करते हैं, नंबर भी चेंज हो जाता है, यूनिट भी चेंज हो जाते हैं, बट एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो क्या होगा, वो होगी फिजिकल क्वांटिटी। टाइम की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, टाइम की वैल्यू है 1 आवर। मैं इसको मिनट में चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको सेकंड में चेंज करता हूं। 1 आवर 60 मिनट लिख दिए मैंने। कैन बी से दैट नंबर 1 से 60 हो गया, यूनिट आवर्स से मिनट हो गए, बट क्या टाइम चेंज हो गया? टाइम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सिस्टम चेंज करने से नंबर भी चेंज होता है, यूनिट भी चेंज होते हैं, बट जो चीज नहीं चेंज होती वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। सो दैट्स फॉर द फर्स्ट बेसिक। देन मूव ऑन टू द सेकंड वन। कैन आई से कि Q is equal to N into U? Can I write Q upon U is equal to N? Now tell me what is the relation of number and unit? Number और unit का क्या relation होगा? Can we say that both are inversely proportional? इसका मतलब अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटे हो जाएंगे, अगर नंबर कम हो जाएगा तो यूनिट बड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है, सपोज मास की वैल्यू है 1 किलोग्राम। जल्दी बोलोगे नंबर कितना है, नंबर इज 1। नाउ चेंज दिस सिस्टम इनटू ग्राम। कैन वी से दैट इट बिकम 1000 ग्राम। अब बताओ जल्दी से क्या हुआ, कैन वी से दैट अगर नंबर बढ़ रहा है, पहले नंबर 1 था, अब कितना हो गया 1000। अगर नंबर बढ़ेगा देन द यूनिट गेट्स शॉर्टर, यूनिट क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर कि जब हम नंबर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली यूनिट जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। सो दैट्स अबाउट द टू इंपॉर्टेंट बेसिक्स रिगार्डिंग दिस पार्ट। सो दैट्स अबाउट द वेरी इनिशियल टर्म, what is a physical quantity, the quantity which are measurable, the quantities which we are using in physics are called as a physical quantity. If you want to specify any physical quantity, then the two parameters should be there. The two parameters are, one is a number, second is a unit. अगर आपने दोनों में से एक पैरामीटर भी छोड़ा, you are not able to specify a physical quantity. Then अगर हम सिस्टम चेंज करते हैं, नंबर भी चेंज होता है, यूनिट भी चेंज होता है, बट क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। मास अगर किलोग्राम से ग्राम में जाएगा तो रहेगा तो मास, अगर आवर्स को मिनट में चेंज करोगे तो रहेगा तो वो टाइम ही। तो टाइम नहीं चेंज हुआ, मास नहीं चेंज हुआ, सिर्फ चेंज क्या हुआ, नंबर चेंज हुए, यूनिट चेंज हुए। दूसरी बात कि नंबर एंड यूनिट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट गेट्स शॉर्टर, यूनिट छोटे होते जाएंगे। सो दैट्स अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल टॉपिक जो हमें आगे यूटिलाइज करके चलना है। सो दैट्स फॉर द टॉपिक how to express, how to represent a physical quantity. So now move to the next point, that is types of physical quantities. Physical quantities we have discussed, that is the quantities which are measurable. Now move on to the quantities, that is the types of the physical quantities. दो टाइप में इसको कैटेगराइज करते हैं, one is the fundamental and second is the derived quantities. ये भी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आपको याद रखनी है। In physics we have the 7 fundamental. पहले हम बात करते हैं बच्चा meaning of fundamental, basic, which cannot be derived from, unique, intrinsic are called as a fundamental. जो basic terms हैं जिससे बाकी terms बनेंगी, but ये किसी से नहीं, इसको आप इसका origin नहीं बोलोगे. You can't say that the origin of these quantities. That's why they are called as a fundamental quantities. The quantities which are unique, which are independent, which cannot be depend upon, which is not depend upon other, which cannot be derived from other, are called as a fundamental quantities. So in the physics we have only 7 fundamental quantities. The quantities are mass, length, time, temperature, current, intensity, जिसको हम luminous intensity भी बोलते हैं, and the last one is a quantity of matter. Once again, physics is having thousands of quantities. No need to you can remember all these quantities. आपको सिर्फ आज के बाद 7 quantities mind में रखनी है. Once again, the 7 quantities are, it's a mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and quantities of matter. इन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर आज से पहले जो भी आपने पढ़ा, आज के बाद जो भी पढ़ोगे वो सारी क्या होंगी बेटा, या इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइव्ड क्वांटिटी. एज द नेम एम्प्लाइज, ड्राइव्ड, ड्राइव करी गई, किससे ड्राइव करी गई,
फंडामेंटल से ड्राइव करेगी। सो दीज 7 आर द बेसिक्स। इन बेसिक्स क्वांटिटीज के ऊपर ध्यान से सुनना, दो ऑपरेशन लगाई गई। एक ऑपरेशन लगाया डिवीजन और दूसरा क्या लगाया गया, मल्टीप्लाई। एंड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग these 7 fundamental we can derive any quantities. We will discuss this one is in detail in the chapter dimensional analysis कि कैसे मैं fundamental quantities को utilize करूंगा, उसके ऊपर सिर्फ दो ऑपरेशन लगाऊंगा, या तो मल्टीप्लाई करूंगा उनको या उनको डिवाइड करूंगा। एंड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड आई विल derive each and every quantity. That's why this is called as a derived quantities. So am I clear about the two quantities? There are some other one also supplementary we will discuss later on. So the two types of physical quantities, one is a fundamental and second is a derived one. The fundamental, which are unique, which are independent, which cannot be derived from other, are called as a fundamental quantities. These 7 are the fundamental जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आपने इससे पहले पढ़ी हैं, इसके बाद पढ़ोगे, वो सारी की सारी कहां जाएंगे बच्चे, वो आएंगे derived quantities, the quantities which are derived कहां से, फंडामेंटल से। कैसे, by applying the two operations, one is the multiply and second is the divide. So that's for the two types of the quantities. So that's for the two types of quantities. Now अगर दो टाइप की क्वांटिटीज होंगी तो डेफिनेटली उनके यूनिट्स भी होंगे। डेफिनेटली अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी होंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स भी होंगे। तो जो दो टाइप की क्वांटिटीज होती है वैसे दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। वन इज द फंडामेंटल यूनिट्स, and second is the derived units. I think you are clear about the fundamental and the derived quantities. The 7 are the fundamental, और इसके अलावा जितना भी आपने पढ़ा, 10th में पढ़ा आपने just like the forces पढ़ा आपने, speed, velocity, acceleration, जितनी भी टर्म इन 7 को छोड़कर आपने पढ़ी बेटा, वो सारी की सारी कौन सी हैं, वो derived quantities हैं। Now the units of the fundamental quantities are the fundamental unit. ये अभी आपने यूनिट भी अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। I'm talking about the mass. Mass is always measured in kilogram. I'm talking about the SI unit. Then about the length. The second fundamental is the length. Length is measured in meter. Then the third one is the time. Time is measured in second. Then temperature. Temperature is measured in Kelvin. Then the next fundamental is the current. Current is measured in ampere. Then the next one is intensity, जिसको हम luminous intensity भी बोलते हैं, measured in candela. That's the unit of intensity. No doubt we will not use it frequently, but you should have the knowledge of that. So intensity is in candela. And the last is a quantity of matter. इसके यूनिट होते हैं बच्चों मोल। तो जैसे आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान में रखनी है, वैसे ही आपको इनके 7 यूनिट भी ध्यान में रखने हैं। जब तक फिजिक्स चलेगी तब तक ये यूटिलाइज होंगे ही होंगे। सो देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड हैविंग द 7 यूनिट, मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड, टेंपरेचर इज इन केल्विन, करंट इज इन एम्पियर, intensity is having the unit candela, and the quantity of matter, for quantity of matter we will use the mole. इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। सो जैसे जैसे वो क्वांटिटीज हम यूज करते जाएंगे हम उनके यूनिट्स लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, कैन बी से ये सारी की सारी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कहां से आई, फंडामेंटल से। कैसे आई, बाय अप्लाइंग द टू ऑपरेशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाय अप्लाइंग द टू ऑपरेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वी कैन ड्राइव ईच एंड एवरी वन। So that's for the two types of quantities and their units. अब हम units की बात करते हैं। If fundamental quantities को, one thing more I just want to convey you, for the CBSE point of view, you have to deal with the first 3 fundamental quantities only. पहली 3 कौन-कौन सी थी? One is the mass, second is the length, and the third one is the time. आपको CBSE point of view से सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज को पढ़ना है। एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू 12th में जाकर आगे वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज भी यूटिलाइज होंगी। ऑल्दो वी विल यूज द फर्दर क्वांटिटीज जस्ट लाइक द 4th 5th वन फॉर द ऑब्जेक्टिव आल्सो, बट इनिशियली वी हैव टू मेनली कंसंट्रेट ऑन दीस 3 फंडामेंटल MLT, that is the mass, length and time. Now the topic is
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इनको स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट्स लिखे गए। तो यूनिट्स जो थे उनके लिए क्या सिस्टम क्या क्या यूटिलाइज करा गया। तो हम बात करते हैं तीनों फंडामेंटल MLNT। स्टार्ट करते हैं पहले सिस्टम से। सबसे पहले मास को मेजर करने के लिए सिस्टम बनाया गया। सिस्टम था बच्चों FPS। Now what was that FPS? That was based on a name of a scientist, FPS। Initially जब FPS सिस्टम आया तो उसमें लिखा गया कि if you want to measure the mass, मास को किस में मेजर करो? P में। P का मतलब होता है पाउंड में मेजर करो। If you want to measure the length, लेंथ को मेजर करो फुट या फिट में मेजर करो। और टाइम को किस में मेजर करो? टाइम को सेकंड्स में मेजर करो। FPS सिस्टम आया। तो सबसे पहला सिस्टम, द फर्स्ट सिस्टम वाज FPS सिस्टम। ये सिस्टम लाया गया किसके लिए? इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के लिए कि इनको किस वे में मेजर करा रहा है। जिसमें लिखा गया कि इफ यू वांट टू मेजर द मास, उसको पाउंड में मेजर करो। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसको फुट या फिट में मेजर करो। और अगर आप टाइम को मेजर करना चाहते हैं देन मेजर इट इनटू द सेकंड। इनिशियल सिस्टम था, लोगों ने एक्सेप्ट करा, वो चला। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है हम पिछले टर्म्स को छोड़ते हैं और अगले पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। साइकिल आया, हमने यूटिलाइज करा, फिर बाइक आया, उसको यूटिलाइज करा। जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट होते जाते हैं। सिमिलरली ऐसा ही हुआ। FPS के बाद सिस्टम आया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम आया, उन्होंने बोला कि नहीं, अब अगर आपने मास को मेजर करना है तो नाउ द मास इज मेजर्ड इन ग्राम। लेंथ को मेजर करना है, लेंथ मेजर किसमें हुई? सेंटीमीटर। और टाइम मेजर हुआ किसमें? सेकंड। मतलब पहले मास किसमें मेजर हो रहा था? पाउंड में। फिर किसमें हुआ? ग्राम के अंदर। फुट सिस्टम कहां से चेंज हो गया? सेंटीमीटर में चेंज हो गया। सेकंड को एज इट इज यूटिलाइज करा सेकंड। तो डेफिनेटली सिस्टम अच्छा था, लोगों ने यूटिलाइज करा डेफिनेटली। देन एक और सिस्टम आया जिसको हमने लिखा MKS सिस्टम। उसमें क्या हुआ कि नाउ इफ यू वांट टू मेजर द वैल्यू ऑफ मास, मास को किसमें मेजर करो? किलोग्राम में मेजर करो। लेंथ मेजर करनी है, लेंथ को मीटर में मेजर करो। And if you want to measure the time, measure it into the second. थर्ड सिस्टम आया और फिर फाइनली आया लास्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम, जिसमें इसी MKS सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके फाइनल जो सिस्टम बनाया गया जिसमें मास को मेजर करा गया किलोग्राम में, length is measured in the meter and the time is measured in the second. So now we are using this international accepted system that is called as a SI system. आज अगर हमने मास के यूनिट लिखने होते हैं then we are always using the mass in kilogram, length is in meter and the time is in second. तो in these 2 years as well as the further year हम mainly 2 सिस्टम यूज करके चलेंगे. One is the CGS system and second is the SI system, because MKS का ही तो एडवांस पार्ट ये था और FPS system we are not utilizing. but एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. Although we are using the international accepted system, सबसे पहला सिस्टम कौन सा था? FPS. तो 2 मिनट के ऊपर लगा दिया. FPS सिस्टम में क्या लिखा गया कि मास को मेजर करो किसके अंदर? पाउंड के अंदर. लेंथ को मेजर करो फुट या फिट के अंदर. टाइम को सेकंड्स के अंदर. नया सिस्टम आया, हम शिफ्ट कर लेंगे सिस्टम पे. CGS आया तो हमने मास को ग्राम में मेजर करा, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करा और टाइम को सेकंड्स में मेजर करा. फिर एडवांसमेंट हुई, नया सिस्टम आया MKS. मास को मेजर किया गया किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करा गया मीटर के अंदर, टाइम को मेजर करा गया सेकंड के अंदर और इसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके फाइनल सिस्टम बनाया गया कॉल्ड एज अ SI सिस्टम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम. नो डाउट वी आर यूजिंग दिस सिस्टम, पर आज भी हम FPS सिस्टम को भी यूटिलाइज करते हैं. आज भी अगर तुम मार्केट में जाकर केक ऑर्डर करने लगो तो वो तुमसे पूछता है कितने पाउंड का केक चाहिए. नो डाउट वी आर शिफ्टिंग टू SI सिस्टम बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस FPS सिस्टम. आज भी केक पाउंड में ऑर्डर होता है. आज भी तुमसे पूछा जाता है तुम्हारी हाइट के बारे में, देन यू ऑलवेज एक्सप्लेन, ऑलवेज टेल योर हाइट इन द फुट और फिट. कभी भी मोस्टली जो होता है हम फुट और फिट के अंदर बताते हैं, हम अपनी हाइट को मीटर या सेंटीमीटर में एक्सप्लेन नहीं करते हैं. सो दैट्स व्हाट द कांसेप्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट. ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थे? 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिस्टम बनाया गया कि इनको एक्सप्रेस करने के यूनिट क्या रखे जाएं. सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स.
Once again, the four types are the FPS system, CGS, MKS, and SI. We are using the last one, that is called as the SI, that is the International Accepted System, that is SI system, जिसमें हमेशा मास अब किसमें मेजर होगा, किलोग्राम में. Length is always measured in the meter and time is always measured in seconds. So that's about the system of units. So we have discussed the SI unit is the International Accepted System. Means whenever we have to measure the value of mass, we will always measure it into kilogram. Length को हम मीटर में measure करेंगे और time को हम seconds में measure करेंगे. Now the point is why the SI system is called as an international accepted system. Why CGS is not an international accepted system? FPS is not an international accepted system. यहाँ पर एक टर्म आती है कि डेफिनेटली इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, पॉइंट्स थे जिसने इसको SI सिस्टम को इंटरनेशनल एक्सेप्टेड बनाया. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम. सपोज आप सबको मैं बोलता हूं कि आज आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करवा सके. जब आप कोई सिस्टम, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, हम मार्केट जाते हैं, सपोज आई हैव टू परचेज अ बाइक, तो मैं जब बाइक परचेज करनी जाते हैं देन आई विल कंपेयर इट विद द अदर बाइक्स, जस्ट लाइक इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, इसकी माइलेज क्या है, इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है. जब मैं सारे फैक्टर्स देखूंगा देन आई विल चूज अ बाइक. सिमिलरली इन द केस ऑफ द एसआई सिस्टम, क्या सोचो क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ कि दीज आर द सिस्टम एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई जो भी हैं, एंड दिस सिस्टम इज हैविंग वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाकियों में नहीं है. दैट्स व्हाई कैन आई कंसीडर द एसआई सिस्टम एज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम. सो टुडे वी हैव द टू टॉपिक्स. One is what is the characteristics of a good system. Suppose आपको एक सिस्टम चूज करना है, आपसे क्वेश्चन आता है कि एक सिस्टम चूज करना है, सोचो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब उसको हम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं. सो द टॉपिक इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम. एक अच्छे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए. जस्ट लाइक सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहता है कि द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट. जो भी सिस्टम आप यूज करो तो सिस्टम शुड भी क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर खुद में इतने मिस्टेक्स हो. सो वी विल नॉट यूज दैट सिस्टम. सो द फर्स्ट पॉइंट of the characteristics of a good system, the system should be accurate. Second, the system should be easily accessible. Accessible का मतलब क्या होता है, यूज करना. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it should be easy to use. मैंने टर्म यूटिलाइज करा साथ में. should be का मतलब होना चाहिए, should be accurate, the system should be accessible, the should be free from errors. वो एक बात होगी वैसे तो accurate होना चाहिए, you can say that it should be free from error. एक important parameter ध्यान रखना, the system should be free from, किससे free होना चाहिए, the free from external agents. तीन external agents, तीन villain जो किसी भी कैलकुलेशन को खराब करेंगे, वो थ्री वेरिएबल्स एक्सटर्नल एजेंट्स हैं बेटा, P, V and T. Where P stands for the pressure, V stands for the volume, T stands for the temperature. इन तीनों के बेस पर कोई भी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है, चेंज हो सकती है. दैट्स व्हाई जो सिस्टम आप यूज करना चाहो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट. एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट हमने करना है. हमने उस एक्सपेरिमेंट को इस रूम के अंदर करा जहां पर एयर नहीं थी, एयर का प्रेशर नहीं था, एंड वी गॉट आंसर. फिर मैंने क्या करा, उसी पेंडुलम को मैं बाहर ले गया. बाहर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जैसे एयर का प्रेशर आया रीडिंग में चेंज आ गया. तो क्या आप एक ऐसा सिस्टम यूटिलाइज करना चाहते हो जो बार बार अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है. टेम्परेचर की बात करते हैं, वही सुबह अगर मैंने उसी पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट को मॉर्निंग में करा तो रीडिंग डिफरेंट थी, और जब मैंने उसको समर की आफ्टरनून में करा तो आंसर डिफरेंट आया. तो क्यों डिफरेंट आया, पेंडुलम एज इट इज है, करने वाला भी एज इट इज है, तो क्या चेंज हुआ, इज द चेंज इन टेंपरेचर. सो आपने एक ऐसा सिस्टम यूज करना है जो इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड ना हो कि प्रेशर चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होने से नहीं होना चाहिए. सिमिलरली इफ यू विल चेंज द टेंपरेचर इट शुड नॉट बी चेंज. सो दैट्स व्हाट द थर्ड फैक्टर. These are the common factor. Definitely we have to write these one, but now I'm going to tell you the four important factor. अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आप वो चार फैक्टर लिखते हो, then there is no need to write these simple parameters. So listen very carefully about the most important parameters. The fourth, the most important one,
द सिस्टम शुड बी कोहेरेंट। यस, क्या बोला मैंने? जिस सिस्टम को आप यूटिलाइज करना चाहते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है द सिस्टम शुड बी कोहेरेंट। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कोहेरेंट पार्ट? मैंने भी आपको बताया था टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज अ फंडामेंटल एंड सेकंड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को ड्राइव कैसे करा जाएगा फ्रॉम द फंडामेंटल? कैसे करा जाएगा? बाय अप्लाइंग द टू ऑपरेशंस ऑन दैट। कौन कौन सी टू ऑपरेशंस अभी बताई? वन इज अ मल्टीप्लाई, सेकंड इज अ डिवाइड। एंड सच प्रॉपर्टी टू ड्राइव ईच एंड एवरी क्वांटिटी from the fundamental quantities by applying the two operations, कौन सी? Divide and multiply. This is called as a coherent system. The system should be coherent, that is by dividing or multiplying the fundamental quantities. If we are able to drive any quantity, then this property is called as the coherent property. Am I clear? Once again, coherent क्या है? Drive करना, किसको? Quantities को drive करना। कहां से करना? Fundamental से करना। कैसे करना? By applying the two operation, that is a multiply and divide. Am I clear about the property called as a coherent? Then the system should be rational. Now again a very important parameter. What's the meaning of rational? Listen, then we will discuss. According to this property, if a unit is assigned to any physical quantity, अगर आपने किसी quantity को एक unit assign कर दिया, then the same unit is applicable for all its subtypes. उस क्वांटिटी के जितने भी सबटाइप्स होंगे उन सबको सेम यूनिट मिलेगा। प्लीज ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। एनर्जी के यूनिट बताओगे सभी? what the unit of energy? एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? The unit of energy is joule. अब मैंने यूनिट ऑफ एनर्जी लिख दिया जूल। अब मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। अगर मैंने एनर्जी को यूनिट दे दिया जूल, अब एनर्जी के जितने भी सब पार्ट्स होंगे उन सबको आपने बिना सोचे समझे क्या यूनिट दे देना है? यू हैव टू अप्लाई द यूनिट जूल। सोचो अगर ऐसा ना होता, अगर 20 टाइप की एनर्जीज होती तो आपको कितने यूनिट याद करने पड़ते? आपको 20 यूनिट याद करने पड़ते, which is not easy to assess. That's why the property called as a rational, once again, if a unit is given to any particular physical quantity, then the same unit is applicable for all its subtypes, then such property is called as a rational property. Then the system should be metric. Metric का मतलब 10 की पावर्स में लिख दो। Means tell me, ये लिखना इजी है या 10 raised to power 4 लिखना इजी है? डेफिनेटली ये वाला इजी है। तो इसके अंदर क्या कर दिया गया कि if you want to write the term, if you want to write the number, then write it in the powers of 10, which is very easy. सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। पता है अर्थ का मास कितना है? The mass of earth is 6 into 10 raised to power 24 किलोग्राम। This is the mass of earth. सोचो अगर ऐसा ना लिखा जाता तो क्या करना पड़ता? 6 के साथ मुझे कितनी जीरोस लगानी पड़ती? 24। शायद 2-3 इधर-उधर हो जाती, then the total term will become wrong. That's why this become a metric system. सन के मास की बात करता हूं। सन का मास है 2 into 10 raised to power 30 किलोग्राम। सोचो बच्चों अगर ये पावर में ना लिखा जाता तो 2 के साथ मुझे कितनी जीरोस लगानी पड़ती? 30, which is not possible to write, which is not feasible to write, which is not easy to write. So that's why this property is called as a metric property. लिख दिया गया कि अगर आपने किसी भी बड़े नंबर को लिखना है तो उसको 10 की पावर्स में लिख दो, so that we are able to write it easily. So तीन मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम। One, the first one is the coherent. क्या था coherent? According to this property, by multiply and divide the fundamental quantities, if we can drive any derived term, then that is called as a coherent system. Rational. If a unit is assigned to any physical quantity, then the same unit is also applicable to all its subtypes. For example, अगर एनर्जी की यूनिट जूल है तो जितने भी टाइप की एनर्जीज होंगी बिना सोचे हमने उसके क्या करना है? उसके यूनिट को जूल लिख देना है। Then the next one is the metric. Metric का मतलब क्या होता है? If you want to write the number, then write it in the terms of powers of 10. And the last, the most important property जो मुझे सबसे important लगती है, the next property, that is the system should be absolute. पूरी फिजिक्स में दो टाइप के सिस्टम यूटिलाइज करूंगा। One is the absolute and second is the gravitational
Now, what's the difference between these two? Absolute and gravitational. पहली बात, the system should be क्या होना चाहिए? Absolute. With gravity, gravitational. Without gravity, absolute. मतलब जब हम किसी भी पैरामीटर में से ग्रेविटी को छोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट, और जब हम ग्रेविटी इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है ग्रेविटेशनल। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? दिस इज मास। अगर मास के साथ ग्रेविटी यूटिलाइज कर ली जाए तो वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। कैन वी से दैट जैसे ही ग्रेविटी ऐड हुई, बात एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द सिस्टम शुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सिस्टम विल नॉट वेरीज, जो वेरी नहीं करता है। क्यों नहीं वेरी करता है? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी नहीं है। ध्यान रहेगा, ग्रेविटी वेरी करती है। ग्रेविटी 4 फैक्टर से मेनली वेरी करती है। अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है, अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है, अर्थ की रोटेशन से ग्रेविटी चेंज होती है, और प्लैनेट्स की शेप से ग्रेविटी चेंज होती है। तो क्या तुम एक ऐसा सिस्टम यूटिलाइज करना चाहते हो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट यहां पर करा और एक उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैंने माउंटेन्स के ऊपर जाके करा तो वैल्यू चेंज आई? वी डोंट वांट टू डू दैट एक्सपेरिमेंट। माउंटेन्स पे जाकर एक्सपेरिमेंट चेंज क्यों हुआ? कि मैंने अभी क्या बोला? ग्रेविटी चेंज होती है। अगर मैं माउंटेन्स पे जाऊंगा, हाइट पे जाऊंगा तो ग्रेविटी चेंज होगी। ग्रेविटी चेंज होगी तो डेफिनेटली पैरामीटर्स भी चेंज होंगे। सो वी डोंट हैव टू यूज सच सिस्टम जो बार बार चेंज हो। दैट्स व्हाई we have to use a system, कौन सा? Absolute system. So the system should be absolute. So these are the characteristics of a good system. जल्दी से दोबारा डिस्कस करते हैं। The first one, the system should be accurate. Accurate होना चाहिए, easily accessible, easy to use होना चाहिए, free from the external agents. कौन कौन से 3 external agents से? Pressure, volume और temperature. Now these 4 are the most important one. The current. Current means by multiply and divide the fundamental quantities हम किसी भी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज current one. रैशनल, अगर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट दे दिया तो उसके जितने भी सब टाइप्स होंगे आपने उनको सेम यूनिट देना है। इफ यू वांट टू राइट द नंबर, राइट इट इन द टर्म्स ऑफ, इन द पावर्स ऑफ 10. एंड द लास्ट, द सिस्टम शुड बी एब्सोल्यूट। दैट इज we don't have to use the gravity in that, क्योंकि ग्रेविटी बेटा बार बार चेंज होती है। ग्रेविटी चेंज होगी तो वैल्यू चेंज होगी। हमने ऐसा सिस्टम यूज ही नहीं करना है जो बार बार चेंज होता रहे। सो ये सारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम। इसलिए मैंने सबके सामने लगाया शुड बी, होना चाहिए, होना चाहिए। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है लास्ट वन, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गुड सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम। एक अच्छे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? और अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। ये जो भी मैंने लिखा ये सारा एसआई सिस्टम के अंदर था, इसलिए एसआई सिस्टम बन गया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम। मींस एसआई सिस्टम अब शुड में नहीं, SI system is accurate system. SI system is a accessible system. SI system is free from external agent. पहले था should be, अब वो है। SI system is a coherent system. SI system is a rational system. It is a metric system and it is a absolute system. So that's about the initial basic of the first part, that is the physical quantities. In my next lecture, we will start the most important part, the combinatorial point of view part, that is a dimensional analysis.